نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے نا؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا بہنوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بہترائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو ایسی محفلوں میں لا کے بٹھاتے ہیں۔ سب نہیں آتے بہنوں، سب قرآن نہیں سمجھتے بہنوں، یاد رکھنا یہ بات۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کے ساتھ بہترائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسی کو یا لا کر بٹھاتے ہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو سب کو لا کر یہاں بیٹھا ہے نا، سب کو یا اللہ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو نیک توفیق دے کہ سب آ کے بیٹھے، سب یہ قرآن کو سمجھے، کیونکہ یہ قرآن کا نور سب سے بہترین نور ہے نا، الحمدللہ۔ اور یہاں پہ دیکھو بہنوں، یہ قرآن میں ایسا نہیں بول سکتی ہوں کہ ارے یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے، جینڈر کا کوئی یہ نہیں ہے نا۔ کوئی بھی جینڈر یا لے کے بیٹھ رہا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر میں یہ نہیں کہہ سکتی ارے اس کی عمر چھوٹی ہے، وہ مڈل ایج کی ہے، وہ بہت بوڑھی ہے۔ کوئی بھی ایج کا انسان بیٹھتا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر میں یہ نہیں بول سکتی ارے وہ تو پرانے زمانے کے لیے، آج کے زمانے کے لوگ کیسے سمجھیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں بہنوں کہ یہ جو سورہ البقرہ ہے، اوکے، الحمدللہ، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا سورہ ہے بہنوں کہ یہ آج کے زمانے کے لیے بہنوں، آج کے دور کے لیے، دس از دا سورہ دا نیڈ آف ٹائم، یعنی آج کے دور کے لیے۔ یعنی آج اگر تم اور میں اگر دیکھنا چاہو، ہے نا، تم ابھی تک تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جتنی بھی آیتیں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے آج کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے کی یہودوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پریزنٹ سیناریو جو مسلمانوں کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے نا، کتنا صحیح جا رہا ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، آپ بھی ابھی بھی انشاءاللہ دیکھو گے، دس از اے سورہ وچ از نیڈ آف دا ٹائم، آج کے دور کے لیے ہے۔ اور کتنے جو مفسرین ہوتے ہیں بہنوں جو کہتے ہیں الحمدللہ کہ یہ جو سورہ البقرہ ہے، دس از دا کی ٹو سکسیس، کیونکہ اگر آج کا سیناریو، آج کا پریزنٹ حالات اور سچویشن اگر تم سمجھ جاؤ، اوکے، اور کیسے اس کو ڈیل کرنا، کیسا کیا کس کے ساتھ ہوگا، اوکے، تو اگر تم یہ سمجھ جاؤ نا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو یہ سورے کو پلیز لائٹلی نہ لے، یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کی اتنی فضیلتیں ہے، اس میں آیت الکرسی ہے، اس میں آمن رسول ہے، اس کو سیکنڈ چیپٹر پہ، سیکنڈ لیسن پہ اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے، تو اس میں بہت ضروری باتیں ہیں۔ تو ذہن میں ہم انشاءاللہ کیا کریں، اس کو یاد کریں، اوکے۔ اور پتہ ہے بہنوں، کبھی کبھی ہم لوگ بہت ٹیسٹی ڈشز کھاتے ہیں، تو اس کا مزہ ہمارے زبان پہ لگ جاتا ہے نا، جیسے کہ کیک کا مزہ لگ گیا ہے ہمارے زبان پہ، ہے نا، بریانی بولو تو مزے لگ گئے ہیں، ہے نا، ایسے ہی آئس کریمز ہے، چاکلیٹس ہے، یہ سب کے مزے ایسے ٹیسٹی ڈیلیشس یہ آئٹمز ہوتے ہیں نا کہ سب نے اس کے مزے چکھے ہوئے ہے نا، اور ہم بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے اور چھوڑتے نہیں ہے نا۔ کبھی بھی کوئی بھی ٹائم سمجھو میرا اگر میرا فیوریٹ آئٹم چاکلیٹ ہے، اور وہ کوئی بھی ٹائم میرے سامنے لا لو اور مجھے اس کا مزہ پتا ہے، میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گی، ہے نا، اے یار پلیز دے 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 کر کے، کریکٹ، کیوں؟ کیونکہ مزہ لگا ہوا ہے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اسی طرح بہنوں یہ قرآن کا مزہ جس کو لگ گیا نا، وہ کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ کہیں پر بھی ہو، کبھی بھی ہو، کہاں بھی ہو اور کیسے سچویشن میں بھی ہو، اگر جس کو قرآن کا مزہ لگ گیا نا تو وہ کبھی اس قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ بہت 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 بولتے ہیں اٹریکٹیو اور بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اس کے مزے، اس کو انجوائے کریں ہم انشاءاللہ، ہے نا، اس کو لینے والے بنے، اس کو چھوڑے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں، ایک ہی لائف دی گئی ہے بہنوں،
اور बार-बार ये मौके नहीं मिलते, राइट? हमको खुद को नहीं पता हम कितने दिन हैं, कितने घंटे, कितने सेकंड्स हैं, पल का भरोसा नहीं है। कितने मौतों के बारे में हम सुनते हैं बहनों। और कल भी एक बहन का मैसेज आया था कि किसी का इंतकाल हो गया, तो इतना दिल को ऐसा लगता है ना कि या अल्लाह दिस लाइफ इज़ सो शॉर्ट। यानी वो बहन इस क्लासेस में आती थी। अल्लाह ताला उस बहन की मग़फ़िरत फरमाए, उसके जन्नत-ए-फ़िरदौस के फ़ैसले फरमाए, उसके कब्र में आसानी फरमाए। वो बहन ये क्लासेस में आती थी और अचानक से पता चला कैंसर है और उसका इंतकाल हो गया। दिस लाइफ इज़ सो शॉर्ट। यानी अल्लाह तबारक ताला उसको मौत से पहले-पहले क्या हिदायत दे दिया देखो माशाअल्लाह। वो थी भी होगी नेक अल्हम्दुलिल्लाह, मगर देखो वो यहाँ पर आ गई, है ना? सही वक़्त पे सही कैसे अल्लाह ताला निज़ाम लेके चलता है ना? तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहनों हम ये कोशिश करें, हम ये फ़िक्रें करें कि हम इस मज़े को कभी ना छोड़ें, इन क्लासेस को कभी ना छोड़ें, कुछ भी हालात हो बहनों। और आज हम सीखेंगे किससे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ओके इंशाअल्लाह। अब देखो बहनों, यस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लास्ट टाइम की जो हमारी आयत थी, मैं उस पर आ जाती हूँ। ओके, मैं जो है वो स्पॉटलाइट करती हूँ, हाइलाइट करती हूँ, तो आप लोग बहनें भी देखें इंशाअल्लाह। जहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो बता रहे थे लास्ट वाली आयत, आयत नंबर 129 में, जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, है ना? कि या अल्लाह तू ऐसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज, उन्हीं में से जो तिलावत भी करे तेरी आयतें, जो सिखाए भी उस किताब को, और जो हिकमत भी सिखाए और जो पाक भी करे। कभी तुमने गौर किया है बहनों इस आयत में? हाँ, कब जो मतलब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक टीचर की दुआ कर रहे हैं, हाँ? अक्सर क्या होता है बहनों कि मैथ्स की टीचर मैथ्स ही सिखाती है, हाँ? उसको कभी साइंस का कोई सवाल कर लो, तो वो बोलेगी भाई तुम साइंस टीचर से पूछो। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे कुरान के बारे में अल्लाह के हुक्म से अगर तुम कहोगे ना ये आयत समझाओ, वो आयत समझाओ, तो मैं अगर मुझे पता रहेगा या तो मैं अपनी किताबें देख के आपको जवाब दूँगी। वही अगर आप मुझे मसले मसाइल का क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे नहीं पता, है ना? तो बहनों वही अगर कोई साइंस की टीचर है, अगर उसको कोई इंग्लिश का पूछता है तो वो बोलेगी गो एंड आस्क योर टीचर, है ना? हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, राइट? पर यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुआ माँग रहे हैं, ओके? वो क्या दुआ माँग रहे हैं, कभी गौर करो बहनों, क्या उस्ताद माँग रहे हैं कि ऐसा उस्ताद भेज अल्लाह, जो पूरा के पूरा केयर कर ले, जो पूरा के पूरा देख ले, है ना? वो जो है उन्हीं में से हो, यानी कि वो बराबर उनके कास्ट, उनके कम्युनिटी में से हो। वो जो है वो आयतों को पढ़ के भी सुनाए, कोई पढ़ने में माहिर होता है, कोई तजवीद टीचर होती है, राइट? फिर वो सिखाए भी, कोई तफसीर टीचर होती है, पर यहाँ पे 2 इन 1, हाँ? और वो हिकमत भी सिखा दे, यानी कि वो जो है वो सुन्नतें भी सिखा दे। क्या रेयर कॉम्बिनेशन है ना? और वो पाक भी करे। यानी कि वो मैनर्स सिखाए, वो डिसिप्लिन सिखाए, वो पूरा सब कुछ सिखाए। तो क्या बेहतरीन दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माँगी, है ना? ऐसा उस्ताद दे जो उसके अंदर सब क्वालिटीज़ हो। जैसे कि बहनों जैसे कि ये जो उस्ताद होता है ना बहनों, ये मामूली बात नहीं है, राइट? पेरेंट्स क्या करते हैं, उस्तादों के पास बच्चों को भेज देते हैं और बच्चे फिर कहाँ पूरी परवरिश पाते हैं, यानी कि कहाँ पूरा फाउंडेशन उनका बनता है, उस्ताद के पास, राइट? एक उस्ताद होता है जो स्टूडेंट्स को बहनों या तो उसको खड़ा कर सकता है या तो गिरा सकता है, राइट? वो इतना अच्छा उसको मोटिवेट कर सकता है, उसको इंस्पायर कर सकता है, उसके पीछे पड़ के उसको इतना बोल देगा कि बच्चा फर्स्ट आने पे मजबूर हो जाए, या तो उसको इतना डीमोटिवेट कर देगा, डिस्करेज कर देगा, इतना उसका मतलब हौसला पस्त कर देगा कि वो बच्चा लाइफ लॉन्ग तक कभी उसका वो कॉन्फिडेंस ही लूज कर देता है। तो उस्ताद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? जैसे कि एक माली होता है बहनों, वो सिर्फ बीज नहीं डालता, बल्कि वो पानी डालता है, वो बराबर से वो पौधे का ख्याल रखता है ना? जब तक कि वो पौधा दरख्त नहीं बन जाए, तब तक वो माली उस चीज़ को देखता है, जब तक कि वो खुद से खड़ा ना हो जाए। उसी तरह एक उस्ताद होता है बहनों। और हमारे इंडिया में और हमारे ये सब कॉन्टिनेंट्स में इतनी कदर नहीं है बहनों। वही अगर तुम जर्मनी चले जाओ या वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ बहनों, तो जो टीचर का पे स्केल है, जो टीचर की सैलरी है बहनों, वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर सैलरी जर्मनी या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर किसी को मिलता है, तो वो टीचर्स को मिलता है।
تو ایک بار کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کر دیا, بینرز لے کے راستے پہ اتر گئے. پائلٹس ہے, ڈاکٹرز ہے اور سیلرز ہے, یہ سب الگ الگ جو ہوتے ہیں نا فیلڈز کے, وہ لوگ راستے پہ اتر گئے کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ٹیچرز وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں نا, اتنا کیا کام کرتے جو آپ لوگ ان کو اتنا ہائی سیلری دے رہے ہو اور ہم کو اتنا لو سیلری دے رہے ہو, یہ کیا بات ہوئی, ان کا لیول پے لیول اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تو جواب میں کیا ملا, ہم تمہارا پے لیول ان سے زیادہ کیسے کرے جس نے تمہیں وہ آکیوپیشن سکھایا. یعنی ڈاکٹرز ہو یا تم پائلٹ ہو یا سیلر ہو یا کوئی بھی تم فیلڈ کے ہو, ہم تم سے زیادہ ہم جو ہے وہ تم سے زیادہ ان کو سیلری کیوں دے رہے, وجہ کیا ہے؟ بیکاز تم کو کیسے زیادہ دے سکتے ہیں؟ جس تمہارے کو ڈاکٹر یہاں تک لایا کس نے؟ ایک ٹیچر نے, ہے نا. تم پائلٹ بنے کیسے, تم سیلر کیسے بنے, ہے نا. تو ہم تمہارا پے لیول ان سے زیادہ کیسے کرے جس نے تمہیں وہ چیز بنایا, تمہیں اس مقام تک جس نے لایا, اسی کو ہم کیا دیں گے؟ زیادہ سیلری دیں گے, رائٹ. تو سوچو بہنوں, ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بہترین دعا اتنے 4000 سال پہلے جو ہے وہ قبول ہو گئی الحمدللہ. اور استاد جو ہے نا وہ بہت بڑے درجے, بہت بڑا بولتے نا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بہنوں ہمارے بچوں کے لائف میں بھی, ہے نا. ان کی زندگیاں سنوار دیتے ہیں. تو اچھے استاد کی ہونا بہت ضروری ہے الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام اتنی بہترین دعا کرے تو اس سے ہم کو بھی سبق ملا کہ ہم بھی دعا کرے, ہے نا. ایسی لمبی لمبی دعائیں کرے بہنوں, کب جا کے کہاں قبول ہوگا ہم کو نہیں پتا. ہم انشاءاللہ دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے نسلوں میں ایسا تو بنا دے یا اللہ کہ ہمارے بچے بھی اس قرآن کے دائی بنے, اس قرآن کو لے کے چلنے والے بنے, ہے نا. آمین آمین آمین. اور انشاءاللہ بہنوں اب جو ہے میں آگے بڑھوں گی, آگے جو آج کی آیتیں ہیں وہاں پر آؤں گی, پر اس سے پہلے اب تک جو میں نے جتنا بھی بتایا گیا سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کسی بہن کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ اوکے الحمدللہ. اوکے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سو رہے کہ جاگ رہے, پہلے یہ بتاؤ. جاگ رہے, سن رہے. الحمدللہ جاگ رہے. الحمدللہ. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا یہ سب جگہ پہ نا بہنوں سکینہ نازل ہوتی ہے. اوکے پہلی بات, پھر روزے میں بھی اچھی نیند بھی آتی ہے نا, تو اس کے لیے پوچھ رہی تھی. اوکے سب بہنیں جاگ رہے الحمدللہ. سب بہنیں جو ہے وہ مجھے چیٹ پہ اور انمیوٹ کر کے جتنے بھی کہا, اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحت دے, تندرستی دے, حیاتی دے, آپ لوگ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. اوکے تو پلیز جو ہے وہ ایسے ہی ساتھ دینا, کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں الحمدللہ. اوکے تو میں آگے بڑھتی ہوں آج کی آیتوں میں, جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آیت نمبر 130 اوکے آپ لوگ آپ کی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اوکے ومن, اوکے یہاں سے میں شروع کرتی ہوں. اور کون ہے اوکے جو کیا کرتا ہے؟ بے رغبتی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے یا ملت سے یا ریلیجن سے. اوکے مگر کون ہے بہنوں جو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بے وقوف کرتا ہے. یعنی کہ وہ انسان جو کون ہے بہنوں؟ بے وقوف ہے, جو بے وقوف بنائے, جو نادان ہے اپنے آپ کو. یعنی جو انسان, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ اصل دین ہے. وہ کون سے دین پر تھے بہنوں؟ وہ دین اسلام پر تھے, ہے نا الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کون ہے وہ جو بے رغبتی کرے, جو منہ پھیرے, جو ٹرن ہو جائے, جو اعراض کرے. ہاں کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے, ان کے اسلام سے, ان کے وے آف ریلیجن سے. مگر کون ہے وہ ایسا انسان جو کون ہے؟ بے وقوف ہے, جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو. یعنی انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا ہے بہنوں, اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ایسا انسان کون ہے؟ بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ہٹے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے بہن؟ کیوں کہا جا رہا ہے نا؟ کیونکہ بہنوں یہودی جو ہے وہ جانتے تھے, یہودی اور کرسچن
ओके, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, ये दोनों, और दोनों की किताबों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ था। ये लोग बहुत दावे करते थे कि हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हैं, हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब के हैं, उनके दीन के हैं, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर चलते नहीं थे इस पे। हाँ, दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हो, तो चल ही नहीं रहे इस पे। अगर तुम कह रहे हो कि भाई हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन से है, उनके दीन से है, तो चल के दिखाओ ना। चलना तो दूर की बात है, वो लोग क्या कर रहे, बेरगबती कर रहे, टर्न कर रहे, इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। अमल तो दूर की बात हो गई, है ना, अमल तो दूर की बात हो गई, वो तो चल ही नहीं रहे हैं उस पर, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है बहनों, कि जो कोई इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे नहीं चल रहा, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं ना, वो कौन है, बेवकूफ है। देखो बहनों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर ही चले, और अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलेंगे, ओके, नबी से कह रहे हैं अल्लाह ताला कि उनको देख के चलो, और हमको कहा जा रहा है कि नबी को देख के चलो। समझ में आ रहा है? तो अगर हम चलते हैं नबी के तरीकों पर, तो गोया हम किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब इनमें वो खासियत क्या थी, इनमें वो क्या बात है, अल्लाह ताला हमको क्यों कह रहा है कि तुम चलना है तो इनके नक्शे कदम पे चलो, है ना, कुछ तो बात होगी, कुछ तो रहेगा। आप लोग सब जानते हो, आप लोग को सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे टेस्ट लिए गए, और वो कैसे उस पे उतरे, है ना। मेन क्या था बहनों, उन्होंने क्या किए, सेक्रीफाइसेस किए, उन्होंने मेन कुर्बानी किए, है ना। जहां उनके जिंदगी में अल्लाह आता था, जहां उनके जिंदगी में अल्लाह आता था, दैट्स इट, वहां पे फुल स्टॉप। उसके बाद वो किसी को भी नहीं देखते थे। यानी कि उनकी पेरेंट्स आ जाओ, उनके वालिदैन आ जाओ, उनकी सिटी, उनका टाउन आ जाओ, है ना, या फिर उनके बच्चे के बारे में आ जाए, या बीवी के बारे में आ जाए, या कुछ भी हो जाओ बहनों, जहां अल्लाह का हुक्म आ गया, वहां पे वो फुल स्टॉप लगा देते थे। वो अल्लाह से पूछते ही नहीं थे कि क्यों अल्लाह। अल्लाह ने कहा बीवी को जाके रेगिस्तान में छोड़ दो, वो उठे और जाके छोड़ने चले गए। बच्चे को ख्वाब में आया, जुबा करो, उन्होंने पलट के पूछा ही नहीं कि अल्लाह रीजन क्या है, एनीथिंग बिहाइंड दिस, तुम बोलो, मैं तो कर ही रहा हूँ अल्लाह, नो डाउट मैं कर ही रहा हूँ, बस मुझे पता चल जाए कि इसके पीछे हिकमत क्या है। हम लोग भी क्या बोलते हैं, हाँ भाई मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं रोजा रखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, पर इसके पीछे क्या है ना, हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, है ना, कि क्यों क्यों ये सब है, क्या जरूरी है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, साइंटिफिकली कुछ फायदे है क्या। आपकी आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही है, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। नेटवर्क इश्यू होगा, प्लीज थोड़ी वेट कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक सिस्टर मुबीन का नेटवर्क आ जाता है, वो ज्वाइन करती है, जब तक हम दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाज क्लियर है ना मेरा? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्या नेटवर्क इश्यूज हो गया। बस अपने ही गुनाह है, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर दे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा था कि हमको जो है वो क्या करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलना है। ओके, और बेवकूफी होगा ऐसा इंसान जो उनके नक्शे कदम पे ना चले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक सेकेंड,
स्क्रीन लगा दी, हाँ। और अल्लाह तबारक ताला उनके लिए क्या कह रहे हैं बहनों, स्पॉटलाइट, हाँ। और जो कोई बेरगबती करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से मगर वो जो अपने आप को बेवकूफ बना ले, और यकीनन हमने चुना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में, और बेशक वो आखिरत में जरूर किसमें है, स्वालिहीन में से है, नेकोकारों में से है। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि अल्लाह ने उनको चुना है। देखो मुस्तफा, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लकब दिया जाता है ना मुस्तफा, मतलब क्या मतलब है उसका, चुना हुआ, है ना। अब इसका क्या मतलब है बहनों, कि इंसान जो है ना, जब हम लोग जाते हैं, ओके, मैं अब डेली लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, कि हम लोग जब जाते हैं मार्केट में, तो ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उठा के लेके नहीं आते, राइट। हम लोग उसमें चुनते हैं, है ना। अच्छा रहता है जो फ्रूट, जो वेजिटेबल, जो तरकारी अच्छी दिखती है बहनों, एक एक भेंडी को हम लोग चेक करके लेते हैं, एक एक कोतमीर को हम चेक करके लेते, ऐसे ही उठा के नहीं लाते, है ना। बेवकूफ बोलेगा। अगर मेरा एक नौकर था बहनों, पहले वो काम करता था, वो हमें इसको जब भी ग्रोसरीज लाने बोलती थी, तरकारी लाने बोलती थी ना बहनों, वो कुछ भी उठा के लेके आ जाता था, कुछ भी, ओके। यानी कि मुझे इतना गुस्सा आता था कि यार अल्लाह, तू चेक भी नहीं कर सकता क्या कि क्या सही है गलत है। यानी कि तू ऐसे ही डाल के लेके आता है, कि हम लोग कैसे भेंडी चेक करते हैं कि भाई ये पुख्ता तो नहीं है, कभी कड़क तो नहीं है, पर वो ऐसे ही कुछ भी ला लेता था। तो हम लोग तो उसको बेवकूफी कहते थे कि भाई इसको बोलना पागलपन है, ये कुछ भी ला लेता है। और मैं तो बोलती थी कि ये जो है ना काम वाला, इसको देख के लोग, वो जो दुकान वाले खुश हो जाते रहेंगे कि चलो बकरा आ गया, इसको अभी वो तो ना, वो टोपी पहनाओ। वैसा ये था, मतलब कुछ भी उठा के लेके आता था, चेक ही नहीं करता था कि टमाटर सही है कि नहीं, या प्याज सही है कि नहीं। गया, बस अपना लिस्ट लेके गया, कुछ भी डाला, कुछ भी ला लिया, है ना। तो हम तो ऐसे नहीं होते, हम कैसे होते हैं बहनों, 10 रुपए का कोतमीर भी चाहिए होता है तो 10 बार उसको आगे पीछे देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो बहनों, अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहे हैं, कि अल्लाह ने उसको चुन लिया, यानी किसको चुन लिया, हाँ किसको चुन लिया बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिया। आज भी देखो बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आज भी देखो, पहले तो उनका बहुत कुछ हुआ था, वो जो जितने भी उन्होंने कुर्बानियां दिए थे वो तो आज आज भी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो नमाज में हम लोग दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, है ना, फिर हम लोग आज जो कुर्बानियां करते हैं, बकरीद वगैरह, है ना, आज भी जो हज उम्रा होता है, हाँ, आज भी लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम रखते हैं। और याद रखना बहनों, सबसे पहले कपड़े अगर किसी को पहनाए जाएंगे तो वो कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी वो किधर है बहनों, कहाँ है वो, मैं तो हम लोग दावे के साथ कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ है, कहाँ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई बताएगा मुझे। हाँ, 7वें आसमान पे सात, है, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें आसमान पे, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर पर टेक लगाए हुए, आराम से बैठे हुए। क्या मकाम, क्या मर्तबा। मैं और तुम हमेशा बोलते ना कि या अल्लाह मुझे भी ऐसा मकाम दे, मुझे भी ऐसे मर्तबे दे, पर ऐसे ही नहीं मिल सकता बहनों। अगर हमको एक ग्लास जूस भी चाहिए, तो वो जूस पाने के लिए, या मुझे और तुम्हें खाना पकाने के लिए तेल चाहिए, तो वो ऐसे ही नहीं मिल जाता, राइट। जब ऑरेंजेस या कोई भी फ्रूट को जब उसको क्रश करते हैं, तब जूस निकलता है। जब ऑलिव्स को, या जो भी ग्राउंड नट है, या जो भी है फुटा, वो जो जो पीनट्स होते हैं, जब उसको क्रश करते हैं तब तेल निकलता है। कितने प्रोसेस में वो जाते हैं, तब जाके जूसेस निकलते हैं, तेल निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता, राइट। अगर तुम और मैं ऐसे मकाम और ऐसे मर्तबे अगर चाहते हैं, तो मुझे और तुम्हें ऐसे आजमाइशों पे खरे उतरने पड़ेंगे, तभी मैं और तुम पास हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते बहनों, याद रखना ये बात। अगर मैं और तुम, ओके, अगर मैं और तुम पास होना चाहते हैं, मैं और तुम ऐसे दर्जे पाना चाहते हैं, तो वो कब होगा बहनों, ऐसे दर्जे पाने के लिए ऐसा कब होगा, ऐसे बड़े बड़े मकाम पाने के लिए कब होगा बहनों, जब हम ऐसे आजमाइशों में खरे उतरेंगे, है ना, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया चल रहा है, ओके। बेस्ट फ्रेंड थे, कैसे हुए, कैसे इतने करीब गए, कैसे वो मकाम और मर्तबा पाए, उसके बारे में डिटेल में कुरान में बताया जा रहा है बहनों, ताकि मैं और तुम
ایسے بنے انشاءاللہ. اوکے, آگے بڑھتے ہیں بہنوں. آیت نمبر 130 ہو چکا, آیت نمبر 131 پر آ جاتے ہیں. اوکے, اور جب کہا ان سے ان کے رب نے, اچھا اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے, کیا کہا؟ اسلم. اسلم ہے نا, کیا مطلب ہے یہ اس کا بہنوں؟ اسلم, سرنڈر ہو جاؤ, سبمٹ ہو جاؤ. یعنی کہ اگر ایک کرمنل کھڑا ہے اور پولیس آ کے اس کو آ کے بولتی ہے ہینڈز اپ, ہاں, تو وہ کیا کرتا ہے بہنوں؟ اپنے ہاتھ دونوں اوپر اٹھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے. دس از دا سیم ورڈ بہنوں, کہ اپنے آپ کو پورا کے پورا کیا کرنا ہے؟ سرنڈر کرنا ہے, سبمٹ کرنا ہے, جھک جانا ہے, پورا کے پورا مسلمان ہو جانا ہے, پورا کے پورا فرما بردار ہو جانا ہے, پورا کے پورا تابع دار ہو جانا ہے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کہہ رہے کہ کیوں اللہ نے ان کو چنا. The reason behind it was what? کہ جب بھی اللہ نے ان کو کہا کہ سبمٹ ہو جاؤ, جھک جاؤ, ایک دم جو ہے وہ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ, تو انہوں نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ میں سبمٹ ہو گیا, یا اللہ میں پورا کے پورا سر جھکا دیا, یا اللہ میں پورا کے پورا, یا اللہ میں مسلمان ہو گیا, فرما بردار ہو گیا, تابع دار ہو گیا. یہ بہنوں بہت ضروری ہے. اب میں اور تم بولیں گے ارے میں بھی تو ایسی ہی ہوں, ہاں یہ کیا بڑی بات ہے, میں بھی تو ایسی ہی ہوں, میں بھی تو مسلمان ہوں, ہے نا, میرے اور تمہارے ذہن میں یہی آئے گا. پر پتہ ہے بہنوں, میں اور تم کیا ہے پتہ ہے, ہم لوگ سیزنل مسلمز ہیں. ہم لوگ کیسے مسلمز ہیں؟ سیزن والے, ہے نا, سیزنل. جب رمضان آئے گا تو دیکھنا ہم لوگ کیسے رہتے, اور جب رمضان نہیں رہے گا تو دیکھو کیسے رہتے, ہے نا. بقرعید آئی, وہ 10 دن آتے ذی الحجہ کے, تو دیکھو ہمارے کیا عبادت میں رہتا ہے. وہ ختم ہوا, ہاں, بقری عید سے دیکھ لو ہمارا کیا رویہ ہو جاتا ہے. محرم کے 2 روزے آئے, دیکھو کیسے بن جاتے. اس کے بعد یہ 2 دن 3 دن گزرے, اس کے بعد آ کے دیکھو ہمارے کو, ہے نا. ہم لوگ کیسے پتہ ہے؟ سیزنل ہے بہن. ہم لوگ کیسے پتہ ہے؟ موڈی ہے بہنوں. موڈ رہے گا نا ایک دم اچھا عبادت کریں گے, موڈ نہیں رہے گا تو بس میری کیا کروں, میری صحت اچھی نہیں ہے نا, میرا آج گھر میں مہمان ہے, آج تو میرے بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں, آج تو میرے گھر میں یہ کام چل رہا ہے, ریپیئرنگ کا کام چل رہا ہے, میں کیا کروں, میری کیا غلطی ہے, ساس اتنا کام دے گی تو میں کیسے کروں, ہے نا. ہم لوگ کے پاس صرف کیا ہے پتہ ہے؟ بہانے بہانے اور بہانے, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے بہنوں؟ کہ وہ 24/7 کھڑے رہتے تھے کہ یا اللہ بس تو بول اور میں یہاں کرنے کو تیار ہوں. دس از واٹ ہی واز. وہ کبھی انتظار نہیں کرتے تھے, وہ کبھی ویٹ نہیں کرتے تھے سچویشن کے, حالات کے. ہم لوگ تو کیسے پتا, تھوڑا بیمار ہوتے نا تو ہم لوگ بولیں گے ارے بھائی بیماری آ رہی ہے, فوراً صدقہ خیرات کرو, ہے نا. ارے یار پتا نہیں نمازیں اوپر, ابھی پتا ہے میرا نیٹ ورک تھوڑا سا خراب ہوا, مجھے میرے پورے گناہ یاد آ گئے. پتا ہے صبح سے میں نے کیا گناہ کری ہوں گی. اللہ استغفار, یا اللہ پلیز معاف کر دے, یا اللہ نیٹ ورک چلا گیا, میرے گناہ ہے اللہ, میرے گناہ, پورا ذہن میں یاد آ گیا. تو انسان کو جب کوئی جو ایسے حالات آتے ہیں تو وہ فوراً سوچنے لگ جاتا ہے, رائٹ, کہ یا اللہ ابھی کیا کروں, ہے نا. بیمار ہو گئی تو چلو صدقہ خیرات کروں, کچھ حالات آ گئے تو چلو اب نماز پڑھ لیں گے, کچھ پرابلم آ گئی تو تہجد پڑھ لیں گے, ہے نا. ہم لوگ سیزنل ہے, ہم لوگ موڈ والے, ہمارے حالات والے عبادت ہوتی ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے بہنوں. وہ اللہ سے کتنی شدید محبت کرتے تھے, اتنا ایکسٹریم محبت کرتے تھے, وہ اللہ سے اتنے کلوز تھے بہنوں کہ وہ کبھی بھی, ہم لوگ تو بیماری آئے گی تو صدقہ کریں گے نا, ہم لوگ کو کچھ پرابلم آئے گا تو تہجد میں اٹھیں گے نا, ہم لوگ رمضان آئیں گے تو نیک ہوئیں گے نا. وہ ایسے نہیں تھے. وہ کیسے تھے؟ 24/7 ایسے تھے بہنوں, 24/7 وہ اپنے آپ کو کیا کر دیے تھے؟ اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیے تھے.
हम लोग क्या बोलते, जब फ्री हो जाऊंगी ना तब क्लासेस को आऊंगी, है ना। अभी जॉब कर रही हूँ, अभी ऑफिस जा रही हूँ, अभी मैं कॉलेज में हूँ, अभी मेरा स्कूल है, अभी मेरा एग्जाम है, अभी मेरा असाइनमेंट है, अभी मेरे घर में मेहमान है, अब मेरा जो है वो शिफ्टिंग का काम चल रहा है, मेरा यहाँ पे अभी सफर जाने वाली हूँ, मेरी शादी में कहीं जाने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, और दीन के काम के लिए यस, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे बहनों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज एवर रेडी। क्या थे वो? एवर रेडी फॉर अल्लाह तबारक ताला। क्या मैं और तुम ऐसे हैं बहनों? अपने अंदर टटोले और खुद ढूंढने। मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, और मैं खुद अपना एग्जाम्पल यहाँ देख के सोचती हूँ कि या अल्लाह कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जरा यहाँ बाहर जाती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो यार आज क्लास मिस कर देते यार, मेरी भी तो जिंदगी है यार, मैं संडे है आज, मैं भी रेस्ट करूंगी। कैसा सोचते ना हम लोग। आज छुट्टियां चल रही है, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी तो ब्रेक चाहिए। कैसे हम लोग खुद ही से ये सब बातें करते। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैसी लाइफ थी बहनों? क्या उनको ब्रेक नहीं चाहिए था? उनको तो सबसे ज्यादा आजमाया गया ना बहनों, रब को ढूंढ रहे थे। मतलब देखो, टीनेज हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हर एज में उनको टेस्ट किया गया। हर हर रिश्तों में उनको टेस्ट किया गया, है ना। माँ बाप के लाइन से, बीवी के लाइन से, बच्चे के लाइन से, कहाँ टेस्ट नहीं किया गया। यहाँ पे हमारा एक टेस्ट होता है हस्बैंड के लाइन से, तो हम तो सबके ऊपर परेशान, है ना। कि वही बच्चे के लाइन से परेशान है तो वो तो पूरा परेशान। मतलब सोचो ना, वो तो पूरे के पूरे आजमाए गए बहनों, और कभी उन्होंने अल्लाह से कभी शिकवा शिकायत नहीं किया, है ना। और बहनों, इसकी अगर मैं मिसाल दूंगी तो आप लोग बोलेंगे अरे वो तो नबी थे, है ना, वो तो नबी थे, उनका क्या मकाम था, तुम हमसे क्या कंपेयर कर रहे हो, हम लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। हम लोग जो है वो आज के जमाने में है, आज का जमाना अलग है, वो जमाने में ये सब नहीं था, है ना। और हम क्या बोलेंगे, अरे छोड़ो ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आज के जमाने में ये नहीं हो सकता, आज जितना कर रहे हैं ना उतना काफी है। हम लोग एक दूसरे को है ना तसल्ली दे देते कि नहीं भाई ऐसा सिचुएशन है तो ऐसे ही चलता है, इतना भी नहीं हो सकते, है ना। हम लोग तसल्ली कर लेंगे कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो जैसे हम नहीं हो सकते। मगर बहनों, एक शख्सियत है, ओके, एक शख्सियत है, मैं जिसका एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, कि जो एवरीडे काम करते हैं, जो एवरीडे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, इनफैक्ट छुट्टी के दिन ज्यादा काम करते हैं, ओके, कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम आराम करते हैं, पूरे घर का ख्याल करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, ओके, और शादी का मौका हो, घर शिफ्टिंग का मौका हो, मेहमान आए हो, तो इनका काम ज्यादा बढ़ जाता है। कौन है वो पता है बहनों? वो माएँ होती है, वो मदर्स होती है बहनों, जो 24/7 काम करती है दुनिया का और घर का। वो कभी हॉलिडे ले ही नहीं सकती माँ, है ना। कोई भी माँ तुम उठा लो, राइट, वो पूरा टाइम काम करती रहती है। हम कभी बोल सकते हैं माँ को? माँ कभी बोल सकती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, बस हो गया, आई गिव अप, अब मैं रिटायर होना चाहती हूँ? हाँ, माँ कभी ऐसा बोल सकती है? इनफैक्ट पता है, एक सर्वे किया गया बहुत सारी माओ का, माए आए आए थे, और माए जो है वो बोल रही है कि हम हमारे बच्चों का इतना केयर करते पर बच्चे हमारी कदर नहीं करते, हम क्या करें, हम खाना टाइम पे देते, हम इतना ख्याल रखते, फिर भी हमारे बच्चे दूसरे दुनिया का गम टेंशन में बैठे रहते, सही से खाते नहीं, सही से बात नहीं करते, बदतमीजी करते, ऐसा करते वैसा करते। तो जो काउंसलर्स थे उन्होंने कहा एक काम करो, तुम लोग है ना अपने बच्चों का इतना केयर करना छोड़ दो, तुम लोग बहुत ज्यादा केयर करते हो ना तो बच्चे सर पे बैठ जाते हैं, तुम लोग थोड़ा सा लीनियंट हो जाओ, थोड़ा सा बच्चों का केयर करना छोड़ दो, थोड़ा पीछे हट जाओ, इंसान को फिर क्या हो जाती है, कदर आ जाती है माओ की, है ना। तो तुम थोड़ा पीछे से हट जाओ तो माँ उन लोग तुम्हारी कदर करेंगे। तो पता है वो जितनी भी माए वो सर्वे में आई थी, उसमें से एक माँ ने भी नहीं कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है मैं करूंगी। सब माओ ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जो केयर करते हैं वो हमारे बच्चों का केयर करेंगे ही करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप जो कह ना कि पीछे हट जाओ जरे दिन, उनको लाइन पर आने दो, उनको कदर आने दो, वो जितने भी माए थे ना उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा हमारे बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो समझ में आया कि कितना लविंग एंड केयरिंग वो माए होती है, राइट। वो 1% है
جو اللہ نے محبت کا اس دنیا میں ڈالا ہے, اور اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں, جانور جانور سے محبت کر رہا ہے نا. اور 99 صفت محبت اور مرسی کے, رحمت کے اللہ کے پاس ہے. تو سوچو وہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے نا. تو جب ماں 24/7 ہمیشہ کھڑی رہتی ہے, سر درد ہوتا ہے, پیٹ کا درد ہوتا ہے, کمر کا درد ہوتا ہے, پھر بھی وہ ماں پکانے کھڑے ہو جاتی ہے, پھر بھی وہ بچے کا کیئر کرتی ہے, پھر بھی وہ کھڑے ہو کے سب کرتی ہے. مہمان آ رہے ہیں یا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, کام بڑھ جاتا ہے رائٹ. اور شادیاں ہوتی ہے یا سفر کو جاتے, سفر میں بھی وہ بیچاری سفر ہی کرتی رہتی ہے, وہ انجوائے تھوڑا کرتی ہے پر کام لگے ہی رہتے ہے نا. تو وہ ہر سچویشن میں جب ماں دنیا کا کام کر سکتی ہے, تو میں اور تم اللہ کا کام 24/7 کیسے نہیں کر سکتے, ہے نا. وی کین بی لائک ابراہیم علیہ السلام, رائٹ. ہم کو ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے. اللہ نے ہم کو یہاں پر یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ سوچتے ہو کہ سب سے سکسیسفل انسان کون ہے, اس کی بایوگرافی پڑھتے, اس کی کتابیں پڑھتے کہ بھائی یہ ملینر کیسے ہوا, یہ بلینر کیسے ہوا, ہے نا, یہ کیسا اٹھتا تھا, کیسے سوتا تھا, اس نے کیسے کمایا, اس کا اسٹرگلنگ پیریڈ کیا تھا, اس کا اینڈنگ پیریڈ کیا تھا, سب پڑھتے رہتے. اصل تو یہ قرآن ہے نا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اگر تم انبیاء کے طریقے پہ چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور اگر تم انبیاء کے طریقے پہ نہیں چلو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے, رائٹ. تو ہم کو اگر کامیابی چاہیے تو انبیاء کے طریقوں پر چلیں گے. 24/7 میں اور تم اللہ کے لیے کھڑے رہیں گے اور کہیں گے کہ یس اللہ وی سبمٹ, یس اللہ میں تیار ہوں, یس اللہ میں فرما بردار ہوں, یس اللہ میں کھڑی رہوں گی, رائٹ. یہی وہ رشتہ ہے نا بہنوں جو جوڑتا ہے اللہ اور میرے بیچ میں, کیا, سبمٹ, ہے نا. میں اور تو مسلمان ہے, مسلمان ہے, بہت اچھے سے ہم کہتے ہیں ارے میں تو مسلمان ہوں. مسلمان مطلب کیا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے, ہر سچویشن میں, ہر حالات میں, ہر اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. ہم تو کمپلین باکس ہے, میرا ہسبینڈ ایسا ہے, میرے بچے ایسے ہیں, میری لائف ایسی ہے. کہاں پہ سبمٹ ہو رہے بھائی, ہم کہاں پہ جھک رہے ہم اللہ کے سامنے. ہم تو کمپلین چالو کر دیتے ہیں. جھکے اللہ کے اس فیصلے کے سامنے, کہے اللہ کی یس اللہ یہ میرا ٹیسٹ ہے اور میں یہاں پہ پاس ہو کر دکھاؤں گی, میں یہاں پہ اچھے اخلاق دکھا کے بتاؤں گی. میں آپ سب بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری بہنیں ہیں جو کہتی ہے کہ دیکھو وہ تو یہ کلاسز میں آ کے نیک ہو جاتی ہے, پر کہیں نہ کہیں ان کے بچے نیک نہیں ہو پاتے, ان کے گھر کے لوگ نیک نہیں ہو پاتے, اور پھر وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ دیکھو میں کیا کروں, گھر چھوڑ کے چلے جاؤں کیا, گھر چھوڑ کے بچوں کو لے کے چلے جاؤں کیا, میں تو اچھی ہو رہی ہوں, بچے صحیح نہیں ہو رہے, شوہر نہیں سن رہے, بچے ٹی وی دیکھ رہے, شوہر نہیں مانتے. سب ہوئے گا بہنوں, یاد رکھنا سب کا ایک وقت ہوتا ہے. جب میں یہ کلاسز میں آئی تب میرا ایک وقت آیا ہے نا, میں فوراً نہیں سدھر گئی, آہستہ آہستہ سدھرتے گئی. ویسے ہی بہنوں آہستہ آہستہ سب سچویشن بدلے گا. میں آج سدھر گئی تو میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ ہاں بھائی کل کا کل یہ لوگ سب سدھر جائے, ٹی ویاں گھر سے نکل جائے, سب اسلامک ماحول ہو جائے. یہ ایسے معجزے نہیں ہو سکتے بہن, سمجھ میں آ رہا ہے. سب کے لیے وقت لگے گا. ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھے نا, ان کو کتنی قربانیاں دینی پڑی, رائٹ. ایسی بیٹھے بیٹھے نہیں ہو گیا بہنوں سب کچھ, تو قربانیاں دینی پڑے گی, سہنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. ایسے گھر میں رہ رہے جہاں پہ ٹی وی کی آوازیں, گانے کی آوازیں, بےہودہ چیزیں دکھ رہے سامنے, سننے میں آ رہا ہے کانوں کے, کیا کریں گے, برداشت کرو, صبر کرو. اچھے ماحول میں تو سب اچھوں کے دکھا دیتے, ایسے برے ماحول میں اللہ سے کنیکٹ ہو کے دکھاؤ. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے بہن, سمجھ میں آ رہا ہے. ایسے بچے ایسے شوہر کو جھیل کے دکھاؤ, یہ اصل ٹیسٹ ہے بہنوں. یاد رکھنا آسیہ علیہ السلام بہت اکیلے تھے بہنوں, کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ, نہ ان کے ماں باپ, نہ ان کا کوئی بچہ, کوئی نہیں, وہ اکیلی عورت. اور کہاں تھی, فرعون کے پیلس میں, فرعون کے قبضے میں, رائٹ. اور فرعون اس کا ہسبینڈ جو کہ کافر, جو کہ مشرک, جو کہ نافرمان, جو کہ ظالم, مارتا تھا ان کو. پر کیا وہ کبھی بھی شکایت کی, کیا آسیہ علیہ السلام نے کبھی وہاں سے بھاگے, کبھی ہم نے قرآن میں یا ہسٹری میں سنے کہ آسیہ علیہ السلام نے پیلس چھوڑ کے بھاگ گئے؟ ہاں, وہ ویسے سچویشن میں ہی تھے, وہ وہیں پہ تھے, سب جھیل رہے تھے وہ, اور اتنا جھیلے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کے قریب گھر دے دے, اللہ جنت اللہ کے قریب,
है ना, अल्लाह तेरे करीब एक जन्नत दे दे, और वो दुआ कबूल हो गई बहनों। समझ में आ रहा है? जब इतना जितना तुमको मिक्सी में डाला जाएगा, वो तो ना वो उतना अच्छा जूस, उतना अच्छा तेल निकल रहा है। तो अगर वैसा चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या करो, हंसी खुशी पास होके दिखाओ, नो कंप्लेन, नो शिकवा शिकायत, बी हैप्पी, है ना, इंशाल्लाह। आसिया अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी थी, ओके। मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा था पानी में आते हुए, तो उन्होंने अपने अपने शौहर को कह के उनको अडॉप्ट किया था और अपने पैलेस में उनको पाला था। वो है आसिया अलैहिस्सलाम, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं था बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ नहीं थे वो टाइम पे, अकेली औरत जी के बता रही है ना। और हम, अगर आप लोग टीनेजर्स है और ये सोचे कि भाई मेरा क्या कसूर है ना, मैं ऐसे घर में हूँ, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को सोचो। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो कितने कुर्बानियां दिए बहनों। मतलब देखने चाहो तो नबियों के जितने भी वाकयात है बहनों, कभी भी उनके वाकयात अगर आपको मिल जाता है इंशाल्लाह, तो ये कुरान से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो कैसे कैसे कुर्बानी उन्होंने दिए बहनों। अब वालिद को ख्वाब में आया कि कुर्बान करो, है ना, बेटे को कुर्बान करो, और कितनी उम्र थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की, 10 12 11 साल के थे, है ना। तो वो बोल सकते थे कि या अल्लाह व्हाई मी, भाई मैं तो अभी अभी, मैं तो दुनिया देखा भी नहीं हूँ और तुम कुर्बानी की बातें कर रहे हो, हाँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। उन्होंने कभी पलट के ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, कि अगर अल्लाह ने ये कहा है तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, है ना। दे ऑल यूज टू सबमिट, वो सब फर्मा बरदार थे, सब ताबेदार थे। आज मैं तो सवाल करना शुरू करती हूँ कि भाई इतनी गर्मी में हिजाब कैसे पहनूं, इतनी गर्मी है, हाँ, बहुत मुश्किल पड़ रहा है, कैसे हिजाब करूं, है ना। क्या क्या हमारे सवाल निकल जाते हैं ना। तो हम इंशाल्लाह हर हाल में क्या करेंगे बहनों, सबमिट करेंगे। अब लास्ट में देखो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सबमिट हो जाओ रब्बिल आलमीन को, है ना, रब्बिल आलमीन के सामने सबमिट हो जाओ, यानी कि पूरा सरेंडर हो जाओ, झुक जाओ। रब्बिल आलमीन क्यों आ रहा है बहनों, यस, उनकी तरबियत भी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो छोड़ के चले गए थे तो दोनों को रेगिस्तान में। अब हाजिरा अलैहिस्सलाम की वो तरबियत थी बहनों, कि उन्होंने अपने बच्चे को वहां पे तरबियत करे थे, उन्होंने खुद अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट किए और उनके बच्चे को भी ऐसी तरबियत करे कि वो बच्चा भी अल्लाह से कनेक्ट हो गया, है ना। वो तो बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, क्योंकि ख्वाब में उन्होंने ऐसा देखा था। तो तरबियत जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की किए थे वो कौन किए थे, उनकी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम। तो एक औरत की तरबियत यहाँ पे आती है बहनों। अगर मैं और तुम, अल्लाह हमको अल्लाह ने औलाद दिए, औलाद नहीं देना एक अलग गम है, अगर औलाद है तो वो अमानत है बहनों, और उनकी तरबियत करना हम पर फर्ज है। हम रहे ना रहे उन्हें अल्लाह से कनेक्ट करे। अब यहाँ पे रब्बिल आलमीन क्यों आ रहा है बहन, है ना। यहाँ पे अगर वो इतना भी कह देते कि मैं झुक जाता हूँ अल्लाह के लिए, तो वो भी काफी था। मगर रब्बिल आलमीन, ये जैसे कि हमसे कोई पूछता है कि आपके शौहर क्या काम करते हैं, तो समझ जाओ मेरा शौहर इंफोसिस में काम करता है, हाँ। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा शौहर मैनेजर होगा, मगर मैं बोलूंगी वो इंफोसिस कंपनी में मैनेजर है ना। वो अपोलो कंपनी में सीईओ है, या तो वो टेस्ला कंपनी में, वो है ना गूगल कंपनी में काम करते हैं। मैं वो कंपनी का नाम बोलूंगी, हालांकि मेरा मेरा शौहर वहां पे सिर्फ एम्प्लॉयर भी रहेगा, मगर मैं जानबूझ के वो कंपनी का नाम क्यों बोलूंगी, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, ताकि सामने वाले पर मैं इंप्रेशन छोड़ू, है ना। ताकि मेरे अंदर वो बड़ाई रहती ना, मैं बोलूंगी कि देखो मेरा शौहर कहाँ काम करता है, गूगल में काम करता है, राइट। तो उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पे, उनके अंदर इतनी अल्लाह की मोहब्बत और इतनी अल्लाह की बड़ाई थी बहनों, कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं झुकता हूँ किसके सामने, तमाम जहानों के रब के सामने, यानी अल्लाह के सामने। यानी वो सिर्फ अल्लाह नहीं बता रहे, वो बता रहे कि मेरा रब कितना बड़ा है, वो तो तमाम जहानों का रब है ना, तमाम वर्ल्ड का रब है। तो यहाँ पे अजमत अपने दिल में लाना बहुत जरूरी है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये आयत और जितनी भी बातें हैं बहनों, वो सबको क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक अल्लाह का फजलो करम है जो सबको समझ में आ गया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो आगे बता रहा है और वसीयत की साथ उसकी, किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की और याकूब अलैहिस्सलाम की। अब अल्लाह तबारक ताला उनकी जिंदगी के बारे में सब बता दिया। अब मौत के करीब का वक्त बता रहा है। ओके, देखो क्या लाइफ हिस्ट्री बता रहा है। एक एक वर्ड भी अगर कुरान में अगर आ रहा है ना बहनों किसी के बारे में, तो वो बहुत बड़ी बात है। मगर यहाँ पे एक एक आयत बताई जा रही है और यहाँ पे उनके लाइफ बोलते ना बायोग्राफी आ रही है बहनों, है ना। शुरू से लेके अब तक उनके बारे में कितना प्यारा और कितना डिटेलिंग आ रहा है। देखो कि यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वसियत भी करके जा रहे हैं। कभी बहनों, यानी कि वसियत इंसान कब करता है? हाँ, इंसान जो है यहाँ पे देखो बहनों, यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है कि ये जो अंबिया थे, ओके, ये कितने ब्लेस्ड और कितने खुशकिस्मत थे कि इनको जब मौत आती थी तो यहाँ पे उनको पहले से नेक लोग थे ना। अब बीमार हो रहे या जो भी हो रहे तो दे यूज्ड टू कम टू नो कि अच्छा मैं मौत के करीब हो रहा हूँ, राइट। तो इनके आसपास कौन है? इनके बेटे, इनकी खिदमत करने के लिए इनके बेटे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी देखो अचानक ही मौत आ जाती है तो इंसान कुछ बोलने वाला होता है, बोल नहीं पाता है, माफी मांगने वाला रहता है, माफ नहीं कर पाता है, नसीहत नहीं कर पाता है, एडवाइस नहीं कर पाता। कितने लोग वसीयत या कुछ बोलना चाहते रहते हैं, नहीं बोल पाते। अचानक से हार्ट अटैक आता है, मर जाते। अचानक से आईसीयू में चले जाते, मर जाते। कोमा में चले जाते, मर जाते, है ना। ऐसी मौतें में मैं ये नहीं कह रही वो खराब मौतें हैं, मैं बोलती हूँ इंसान को वक्त नहीं मिलता है ना कितनी बातें बताने के लिए। पर यहाँ पे अंबिया जो है वो कितने खुशकिस्मत है, ओके। इनको एक तो वक्त मिल रहा है, ओके, और दूसरा इनके बेटे इनके सामने खड़े हैं, है ना। इनके हालात में, इनके सिचुएशन में खड़े हैं। और मरते वक्त इंसान जो है ना वो हमेशा क्या सोचता है कि भाई कोई भी मतलब कोई भी इंसान जो है एक फितरतन एक नेचुरल बात होती ना कि मेरे डैडी मम्मी का इंतकाल हो गया। अभी गम तो है, बहुत ज्यादा गम है, मगर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी आ जाता है ना कि भाई अभी सब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होएगी, है ना। उसको घर मिलेगा, उसको माल मिलेगा, उसको ये कार मिलेगी, उसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, फ्लैट कार प्रॉपर्टी, ये सब सबके जहन में रहता है, हयाती में रहता है। मौत के बाद तो दूर की बात है, हयाती में ही सब बच्चे सोच के रख लेते हैं ना कि मेरे डैडी के इतने करोड़ों रुपए हैं, हम लोग में ऐसा होगा वैसा होगा, सब जहन में सबके याद रहता है ना। पर यहाँ पे देखो बहनों कितनी प्यारी बातें बताई जा रही है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उन्होंने वसीयत की है अपने बेटों को, हाँ। और किसको? याकूब अलैहिस्सलाम को। याकूब अलैहिस्सलाम तो पोतरा है ना, वो बेटे को भी और पोतरों को भी। और क्या वसीयत की है बहनों? अब हम सोचेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, मगर नहीं, उन्होंने क्या कहा कि या बुनैया, ए मेरे बेटो, है ना, अपने बच्चों को कह रहे ओ माय सन्स, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें इस दीन को, बस नहीं तुम मरना मगर किस हालत में कि तुम क्या हो? फर्मा बरदार रहो। यानी कि तुम जो है वो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है तुम्हारे इस दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए। यानी ये बहुत बड़ी बात है। इंसान वसीयत जब करता है ना बहनों, तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ही वसीयत करता है। वो बैठ के वहां पे गप्पे या जोक्स नहीं मारता बढ़ेगा, है ना। मौत के टाइम पे अगर इंसान को कुछ वसीयत करनी होगी तो वो सीरियस बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। उसी तरह कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि पहले तो तुमको अल्लाह ने चुन लिया इस दीन के लिए, सो डोंट टेक दिस एज ग्रांटेड। हम लोग ने तो एज ग्रांटेड ले लिया है ना, मुसलमान घरों में पैदा हुए तो हमको तो इस चीज की कदर ही नहीं है ना। हमको तो कदर ही नहीं आती है, मगर वही एक रिवर्ट होती है। वो बेचारी अलीफ बा ता सा जब तक सही नहीं होता वो छोड़ती नहीं है। हम तो बचपन से टूटा फूटा सीखे, बस वही ठीक है ना। कुछ भी पढ़ लो चलेगा, क्यों? हम लोग मुसलमान है ना भाई, हमको तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। पर यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि कदरों कीमत समझो, उसका शुक्र अदा नहीं करो, राइट। कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को तुम्हारे लिए चुन लिया है, बस नहीं तुम मरना मगर किस हालत में तुम रहो? किस हालत में रहो? तुम मुसलमान रहो। यानी हमेशा तुम क्या करो? फर्मा बरदारी करो। और फिर क्या कहा? क्या तुम जो है वो गवाह थे? क्या तुम मौजूद थे कभी जब आई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत? हम तो ये मौत वर्ड ही नहीं लाते,
है ना। हम तो बोलते अल्लाह अल्लाह नाउज बिल्ला, बेअदबी, मौत नहीं बोलने का, है ना। हम तो बोलते क्या पर्दा पर्दा आ गया, है ना, पर्दे पे चले गए, क्या क्या तो लफ्ज और क्या क्या तो फ्रेज बोलते बहनों। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बहनों वो कोई भी हो, अंबिया भी हो, सबको मौत का मजा चख लिए। हमारे नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई है बहनों, याद रखना। कितने लोग बोलते कि अरे ऐसा नहीं बोलने का, इंतकाल हुआ मौत आई, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलने का, बेद भी होता है। ऐसा बोलो पर्दा फरमा गए, ऐसा बोलो वो पर्दे में चले गए, ऐसा बोलो। ऐसा कैसा बोलेंगे हम लोग, है ना। जब यहाँ पर हमको अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर एक को मौत आना है। उसके बाद वो क्या हो रहा है वो दूसरा चीज है। वो अभी तक जितने भी अंबिया है ना बहनों, याद रखना, मौत का मजा जरूर चखते ही चखते हैं। उसके बाद याद रखना, कोई भी मट्टी, कोई भी कीड़ा, कोई भी आग, ना कोई मट्टी उनको खा सकती है, ना कोई कीड़ा उनको छू सकता है, ना कोई आग उनको जला सकती है। कोई भी अंबिया और बहनों वो आज भी जिंदा है, आज भी हयात है। जितने भी अंबिया, जितने भी कब्रों में है बहनों, याद रखना वो सब जिंदा है। ओके, तो ये जहन में याद रखे। मौत आई उसके बाद वो लोग दूसरे आलम में, मगर दे आर अलाइव। नो बडी, कोई मतलब अगर तुम किसी और को डाल दो अगर मट्टी में, तो वो मट्टी खाने लग जाती है, उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है, राइट। कीड़े खाने लग जाते हैं, पूरी बॉडी खराब हो जाती है, सड़ जाती है, बास आ जाती है। पर हमारे अंबियाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ये हम फर्क है इंशाल्लाह, तो ये भी हम याद रखें। ओके, तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे, क्या क्या तुम गवाह थे जब आ गई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत। जब उन्होंने कहा अपने बेटे को, किसने कहा बहनों, याकूब अलैहिस्सलाम। अब इनके बारे में खास कर क्यों आ रहा है बहनों, समझ में आ रहा है। मैंने बताई थी आप लोगों को, दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका जो है, जो न्यू बहन ने, मैं उनको बताते चलूं कि उनको लकब दिया था इजराइल। इजराइल हिब्रू वर्ड है, मतलब अब अल्लाह का बेटा। ओके, और जितने भी उनके बेटे हैं वो 12 बेटे, 12 कबीले जो अपने आप को कहते हैं बनी इसराइल, यानी इसराइल के बेटे। ओके, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत मानते थे, याकूब अलैहिस्सलाम को ही लेके चलते थे वो लोग। अच्छा, तो उसके लिए या खास कर आ रहा है, यहूदियों को खास कर कहा जा रहा है कि क्या तुम मौजूद थे क्या जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई थी, और जब उन्होंने कहा अपने बेटों को कि तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद जो है वो किसकी इबादत करोगे। तो सबने क्या कहा बहनों, उन्होंने कहा कि हम बंदगी करेंगे आपके माबूद की और हमारे बाप दादाओं की माबूद की। कौन है वो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, है ना। याकूब अलैहिस्सलाम के डैडी का नाम क्या था, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके डैडी का क्या नाम था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है ना। और एक मिनट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सॉरी, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम कैसे आ गया, हालांकि ये चचा होते ना, ये तो सौतेले बेटे थे, करेक्ट, और चचा हो जाते ये लोग उनके। मगर यहाँ पे इनका नाम ऐसा आता है, तो मुफस्सरीन बताते हैं कि एक तो बता दिया कि भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम लाना इस बात की गवाही है कि इनको भी लेके चलो, क्योंकि बनी इसराइल कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक स्टेप सन थे, ये सौतेले बेटे थे, दो भाई, दो बीवियां थी ना, तो कहीं ना कहीं इसहाक अलैहिस्सलाम के जो नस्ल थी, ओके, याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी, वो कहीं ना कहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानती नहीं थी। समझ में आए सौतेलापन। सॉरी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अल्लाह ताला को उनका प्रेफरेंस दिखाना था कि नहीं, उनको भी लाओ, यहाँ पे उनको भी लाओ, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी लाओ। और कभी भी बहनों अरबी जुबान में चचा और वालिद ये दोनों के लिए एक ही लफ्ज आता है, तो यहाँ पे वो इसका यहाँ पे ये रीजन भी है। ओके, तो अल्लाह ताला ने क्या कह दिया, या बेटों ने क्या कहा कि हम किसके माबूद को मानेंगे, हमारे बाप दादाओं की, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। और क्या है वो माबूद एक, यानी अल्लाह ताला की हम इबादत करेंगे और हम उसी के लिए क्या है, फर्मा बरदार है। तो बहनों ये हमारे लिए भी आता है, ओके, कि हम भी क्या करें, एक अल्लाह की इबादत करें। अब यहाँ पे ये सब डिटेलिंग क्यों आ रहा है बहनों, क्योंकि आज भी ऐसे ही हो रहा है ना, फिरकों में पड़ चुका है।
है ना। अब मैं फिरकों के नाम लूंगी तो वो कंट्रोवर्सी में हो जाएगा, है ना। कितने फिरके आ चुके हैं बहनों, और हर फिरके को लगता है कि हम जन्नती है, सामने वाला क्या है, जहन्नमी है ना। हम लोग सही है, हम लोग सही जमात है, सामने वाला क्या है, गलत है। उसी तरह यहूदी को लगता था कि हम सही है। देखो बहनों, सब मुसलमान थे, करेक्ट, सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। सबको अल्लाह ताला कह रहे कि एक अल्लाह को मानो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब पर चलो, है ना। वो कैसे थे देखो, कैसे, वैसे तुम लोग नहीं है ना। सबको एक बनना था, यूनिटी चाहिए थी। मगर क्या हो गया, यहूदी कहने लगे हम सही है, ईसाई कहने लगे हम सही है। सबको लग रहा था हम सही है, तुम सही है ना। अगर यहूदी क्या कह रहे थे कि क्रिश्चियन सही नहीं है, हम लोग जन्नती है, इनको लग रहा था कि नहीं ये लोग सही नहीं है, हम लोग जन्नती है। तो ये जो चीज वो जमाने में चल रही थी, आज भी वही फिर चीज चल रहा है। हर फिरके को लग रहा है कि हम सही है, बस सामने वाला गलत है ना। क्या क्या फिरके आ चुके हैं बहनों मुसलमान में भी, है ना। और अल्लाह तबारक ताला जो सवाल हमसे पूछेंगे, कब्र में 3 सवाल, उठने के बाद 5 सवाल, उसमें कहीं ये फिरकों के बारे में नहीं है। कहीं अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन सी जमात के हो, कौन से फिरके के हो। हम लोग बढ़ गए बहनों, है ना, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, अपने आप को डिवाइड कर दिए। मगर ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके। और आज ये फिरका है ना बहनों, सनग्लास की तरह है। चश्मा होता है ना, सनग्लास का चश्मा, काला पहनो, सब काला दिखता है ना। जो कलर का तुम पहनते हो वो कलर का चश्मा, मतलब वो ही तुमको दिखता है। आज जो मेन फिरका जिसको मैं और तुम फॉलो कर रहे हैं ना, वो ख्वाहिश का फिरका है बहनों, डिजायर्स का फिरका है। मैं सोच रही हूँ मैं सही हूँ, मैं जन्नती हूँ, तुम सोचोगे तुम सही हो, तुम जन्नती हो, है ना। और सब अपनी अपनी ख्वाहिश पे चल रहे हैं। असल किस पे चल रहा है हमको, कुरान और सही हदीस पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, मैं आपको ये बात जरूर बताते चलूं कि हम भी वैसे ही करते हैं बहनों। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुरान और सही हदीस को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत सारी बहनें पूछती है, आप क्या जमात की है, आप वो जमात की है, आप ये जमात की है। मैं कहती हूँ मुझे जमात का नाम नहीं पता, मैं बोलती हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं तो उनको यही, जब भी मुझे कोई ने भी बहन ये सवाल करती है, मैं उसको यही कहती हूँ कि आई एम अ मुस्लिम, और मैं कुरान और सही हदीस को फॉलो करती हूँ। अब इसको क्या नाम तुम देना चाहते हो वो दे दो, तुम लोग जो नाम देना चाहते हो वो दे दो, मुझे ये जमात का नाम नहीं पता। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब क्या है बहनों, मुस्लिम है। एक अल्लाह की माने, एक बन के चहे, किसी पर भी हम ये ना कहे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, और सही पर चलेंगे। कम चलेंगे पर सही चीज को चलेंगे। अल्लाह ताला को बहनों क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे क्या कहा गया है बहनों, ये जो उम्मत यकीनन गुजर चुकी, उसके लिए है जो उसने कमाया, तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया। यानी कि यहूदियों को लगता था कि जो कोई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी कि उनको लगता था कि जो कोई भी यहूदी बनेगा ना वो कामयाब हो जाएगा, वही सही है, हाँ, वही जन्नत जाएगा। तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उम्मत थी जो गुजर चुकी, जो उसने कमाया कमाया। यहूदी को क्या लगता था कि जो भी हमारे नस्ल से आएगा ना वही जन्नत जाएगा। यानी कि वो लोग क्या सोचते थे कि हमारे से, मतलब यहूदियों से होना जरूरी है, भले तुम कोई अमाल करो ना करो। आज मुसलमान भी तो यही बोल रहा है ना, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, जन्नत में हम ही जाएंगे। अमाल से वो लोग जीरो है बहनों, नमाज नहीं पढ़ते, अखलाक से बुरे हैं, जक़ात नहीं देते, बिल्कुल नाम के मुसलमान है बहनों, पर कॉन्फिडेंटली क्या जी रहे हैं आज हम लोग कि बस मैंने कलमा पढ़ ली ना, हम लोग मुसलमान ही देखना जन्नत जाएंगे, हमारे नबी देखना सिफारिश करेंगे, हम लोग ही है जन्नती, बाकी सब दोजखी है। हम लोग तो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना, सब दोजखी है। जो मुसलमान रहेगा ना वही जन्नत जाएगा। अरे भाई, पर कौन सा मुसलमान जन्नत जाएगा, जो अकीदे से भी मुसलमान हो और जो अमल से भी मुसलमान हो,
ہے ना, अल्लाह को मानते तो है पर अल्लाह की नहीं मानते हैं। तो दोनों है बहनों, अल्लाह को मानो भी और अल्लाह की हर बात मानो भी, दोनों जरूरी है। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहनों हमेशा अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को बोलते थे कि देखो तुम लोग ये मत समझ जाना कि तुम लोग मेरे से रिलेटेड हो, मेरे बेटा बेटी हो या मेरे बीवी हो या मेरे चचा हो या मेरे पुप्पी हो तो तुम लोग बच जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे आमाल ही है जो काम आएंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके, जो सबसे ज्यादा चहीते हैं, राइट, जो सिफारिश करने वाले, पर वो खुद अपनी बेटी को हजरत फातिमा तआला अन्हा को कहते थे कि बेटी दुनिया के लाइन से, माल के लाइन से जो चाहे ले लेना, पर अल्लाह ने अगर तुझे पकड़ लिया, अगर अल्लाह ने तेरे आमाल से कुछ पकड़ लिया तो मैं तुझे बचा नहीं सकता। सोचो, ये बोलना तो उनको था बहनों, पर हमारे लिए मेन है। हम सब जानते हैं हजरत फातिमा तआला अन्हा, उनको जरूरत ही नहीं है, पर ये सब बातें किसके लिए थी? हमारे थे, क्योंकि हम भी ओवर कॉन्फिडेंट जी रहे बहनों। मैं भी सोचती हूँ कि अरे मैं तो मुस्लिम हूं ना, बस मैं बच जाऊंगी, है ना, मैंने कलमा पढ़ ली ना, मैं तो अल्लाह को एक मानती हूँ ना, मैं शिर्क तो नहीं करती हूँ ना, तो मैं बच जाऊंगी। और हम कितने बार सोचती हूँ कि अरे चलो भाई कुछ हो भी जाए तो नबी तो है ना, सिफारिश कर लेंगे ना। ये सब बातें जहन में शैतान डाल के क्या करता है, हम सोचते हैं गुनाह कर लिए तो क्या हो गया, है ना, ये सब है ना साथ में। तो हम ये बातें याद रखें, यही चीजें यहूदी सोचते थे। हमको ऐसा नहीं बनना है। जो कुछ भी वो उम्मत ने काम की वो उनके साथ, हम जो कर रहे हैं वो हमसे जो है वो सवाल किया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, और उनके लिए जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और नहीं तुम सवाल किए जाओगे उसके बारे में जो वो काम करते थे। यानी वो जो काम करके चले गए वो चले गए, तुमसे वो सवाल किया नहीं जाएगा, तुमसे तुम्हारा सवाल किया जाएगा। समझ में आ रहा है? हमसे हमारा सवाल किया जाएगा। हमारे बाप अजदाद खानदान, मेरे दादा दादी क्या करके गए, वो सब जो उन्होंने किया वो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। मेरे से अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम्हारे दादा दादी जो क्या करके गए, है ना, वो सब मेरे से नहीं पूछेगा। हाँ, मेरे से अल्लाह वो पूछेगा जो मैं कर कर आई हूँ। और ये जो यहूदियों का ओवर कॉन्फिडेंस था, क्रिश्चियंस क्या बोलते कि नाउजबिल्ला, ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरे गुनाह, है ना, पूरे गुनाह क्या कर दिए, माफ कर दिए, पूरे गुनाह वो लेके सेक्रीफाइस कर दिए। क्या क्या तो गलत गलत बातें क्रिश्चियंस भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, और आज मुसलमान भी वही ट्रैक पे चल रहा है ना। तो अल्लाह ने साफ कह दिया बहनों कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी तुमने कमाया होगा इसका सवाल जवाब किया जाएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लास्ट आयत पर आ जाते बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, और वो कहते हैं हो जा यहूदी या नसरानी, तुम ही हिदायत याफ्ता हो, है ना। क्या कह रहे हैं कि तुम ही हिदायत पा जाओगे, कह दो बल्कि मिल्लत इब्राहिम हनीफ है। यानी कि कह दो कि ये सब नहीं, यहूदी बन जाओ, नसरानी बन जाओ, है ना, तुम हिदायत पालोगे नहीं, बल्कि क्या, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है, जो उनका तरीका है, वही क्या है, यकसू है, खालिस है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद पर थे, है ना, वो हनीफ थे बहनों, वो खुद एक अल्लाह को मानते थे और एक अल्लाह ही की दावत देते थे, और वो नहीं थे मुशरिकों में से। यानी ये क्यों खास कर कहा जा रहा है बहनों, क्योंकि ये जितने भी उस वक्त में लोग थे ना, वो लोग सब कहते थे हम लोग इब्राहिमी है, हम लोग इब्राहिमी है, हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में है। यहूदी भी कहता था, ईसाई भी कहते थे, और वहां पे जो मुशरिक लोग थे वो भी यही बात कहते थे। हालांकि सब शिरक कर रहे थे बहन। तो अल्लाह ताला को ये खुलासा करना ही पड़ा कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर तुम दावा करते हो तो याद रखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो मुशरिक नहीं थे, वो शिरक काम नहीं करते थे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हम क्या करें, याद रखें इंशाअल्लाह। और यहाँ पे बहनों खास कर यहाँ पे बता दूं कि अगर हम कहते हैं ना कि हम उनकी फैमिली से है, उनके खानदान से है, सैयद से है, तो ये सब काम नहीं आएगा। ओके। और दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि वो पीर बाबा की मैं मुरीद हूँ, वो फला मेरे लिए सिफारिश करेंगे, या मैं फला क्लासेस से जुड़ी हुई हूँ, वो आपा मेरे लिए दुआ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बहनों। ओके, हमको हमारा खुद ही करना है। मिल्लत का मतलब जो है वे, ओके, तरीका, दीन, मतलब रास्ता, क्रीड, रिलीजन,
یہ سب اس کے میننگ ہے. یکسو مطلب خالص ہونا, اپرائٹ ہونا, یعنی کہ توحید. توحید از واٹ از اپرائٹ. حنیف, یکسو, خالص, یعنی کہ ایک طریقہ. اوکے, حنیف یعنی کیا؟ ایک, خالص, توحید, اس کو کہتے ہیں حنیف. اوکے, آئی ہوپ دیٹ انڈرسٹینڈ. یعنی کہ آپ لوگ ایسا سوچ لیجئے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, راستہ, اوکے, وے آف ریلیجن. اور حنیف یعنی کیا؟ اپرائٹ, خالص, ایک سو ہونا. یس, خالص ہونا یعنی ایک ریلیجن پر ہونا, ایک اللہ کو ماننا. دس از واٹ حنیف. وہ ایک طرف ہی دیکھتے تھے بہنوں, جیسے کہ نہیں وہ گھوڑے کے آنکھوں کے اوپر ایک ڈال دیتے بہنوں, ہے نا. گھوڑے کے آنکھوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک پردہ رہتا ہے. وہ یہاں وہاں نہیں دیکھتا ہے بہنوں, وہ صرف سیدھا دیکھے گا. ویسے ہی تھے بہنوں, ویسے ہی ہم کو ہونا ہے. یہاں وہاں کے ریلیجن کو, کلچرز کو, یا لائف سٹائلز کو, یا طریقوں کو نہیں دیکھنا ہے بہنوں. ہم لوگ بہت جلدی ہم ایک اللہ پر اور ایک اسلام پر نہیں چلتے بہنوں, ہے نا. ایک سمٹ ہو کے رائٹ نہیں رہتے. ہم لوگ بھی کیا کرتے, شادیوں میں کیا طریقہ لاتے بہنوں؟ کوئی یہودی کا طریقہ آ جائے گا, کوئی کرسچنز کا طریقہ آ جائے گا, یا تو کوئی مشرکوں کا طریقہ آ جائے گا. کتنے ہمارے فیسٹیولز میں یا ہمارے خوشی کے موقع میں, غم کے موقع میں اگر آپ دیکھو گے تو غیروں کے طریقے اس میں آ چکے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو یہی سمجھا رہے کہ ایک یکسو ہو کے ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ریلیجن پہ رہو. وہ یہاں وہاں نہیں دیکھتے تھے بہنوں, وہ ایک ریلیجن پہ چلتے تھے, ہے نا. ہم لوگ ایسے کہاں ہیں بہنوں بتاؤ؟ ہماری تو اگر گھروں میں میت ہو, یا گھروں میں خوشخبری ہو, یا شادی ہو, یا کسی کا پیدائش ہو, ہمارے گھر میں سب سے زیادہ شرک اور بدعت کامیں ہوتے بہن. آپ یقین نہیں کرو گے, آج بھی ایسے مسلمان گھر ہے, محرم کا مہینہ جیسا آتا ہے پوچھنے لگ جاتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نا. سوائے یہ روزے کے بہنوں اور کچھ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے نا. اور یہ جو نیا نیا سب لوگ سوچتے ہیں کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں, یہ پکاؤں وہ کھاؤں, اس سے برکتیں آئے گی, اس سے رزق وسیع ہوگا, یہ سب کہیں سے کچھ ثابت نہیں ہے بہنوں. یاد رکھنا, محرم حرمت والا مہینہ, محرم اللہ کا مہینہ, محرم گناہوں سے بچنے کا اور نیکیاں زیادہ کرنے کا مہینہ ہے بہنوں. یہ روزے کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے, اور کیا آتا ہے بتاؤ؟ کھانے پینے کے بارے میں آتا ہی نہیں ہے, پر لوگ یہاں پہ پھر بھی کچھ تو کچھ لا لیتے, اور حوالہ بھی رہتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے. کہاں سے لاتے ہیں واللہ عالم, ہے نا. تو ہمارے اندر بہت کچھ کیا ہے, غلط ہے. تو انشاءاللہ میں تو اللہ سے میرے لیے ہی خود دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو جو ہے نا وہ صحیح ٹریک پہ رہے, ہم پورے اسلام پہ چلنے والے بنے, پورے یکسو حنیف ایک طریقے پہ, ایک ریلیجن پہ رہے. ہم سب ایک ہو جائے اور ایک طریقے پہ آ جائے بہنوں, ورنہ کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کچھ بھی بولو تو پوچھتے ہیں حنفی طریقہ کیا ہے, شافعی طریقہ کیا ہے نا. حالانکہ سب طریقے ہمارے نبی کے ہیں, پر کتنے اختلاف ہے دیکھو, ہے نا. کتنے چیزیں بولتے اس کے امام کے نزدیک ایسا ہے, اس کے امام, مطلب اتنا کنفیوژن ہوتا ہے کہ کس کو کیا بتاؤں, کیا سنوں, کیا سمجھاؤں, بہت اختلاف ہو جاتا ہے نا. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ رب ہمارا ایک ہے نا, قرآن ہمارا ایک, اسلام ہمارا ایک, نبی ہمارے ایک, سب کچھ ایک ہو کے بھی ہمارے بیچ میں اتنے اختلاف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک پر رکھے, ہے نا, ایک دین اسلام پہ چلنے والا بنا دے, بنا کنفیوژن کے, بنا کسی اختلاف کے, ہم سب کو یونٹی ایک بن کے رہنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. اور ہم سب ہے نا بہنوں پورے اسلام پہ چلنے والے بن جائے. آمین. پورے قرآن کی آیتوں پہ چلنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کی کلاسز کی برکت سے یا اللہ تو ہم کو بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا دے, جیسے وہ یکسو تھے, جیسے وہ ایک وے آف طریقے پہ چل رہے تھے, اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے. ہم ایک طریقے پہ چلے, ہم ایک ہو کے رہے, ہم صحیح چلے, بھلے ہماری عبادت کم ہو پر صحیح ہو. اللہ تو ہم کو ایسا بنا دے. آمین آمین آمین. یہاں پہ میں دعا پڑھ لیتی ہوں پہلے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت
अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे जितनी भी अच्छी बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमको बाअमल वाला बना दे। या अल्लाह हमको और हमारे पीढ़ियों पीढ़ियों को, नस्लों नस्लों को कुरान पे चलने वाला बना दे। और जितने भी गलतियां थे, जितने भी कोताहियां थे, मैं अल्लाह से और आपसे इसकी माफी चाहती हूँ। और अल्लाह से दिल से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी है, या अल्लाह तू इन सबको कबूल कर ले। या अल्लाह इन सबको 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 तू दीन का दाई बना दे, इनके नस्लों को दीन का दाई बना दे, इन सब बहनों को बोलने वाला बना दे, इन सबको या अल्लाह तू टीचर बना दे, कुरान का दाई बना दे, इन सब की सब दुआओं को कबूल कर ले। इनकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर बीमारी, हर हर एक बला मुसीबत को या अल्लाह तू दूर कर दे। आमीन आमीन आमीन। और या अल्लाह इन सब बहनों को ऐसा रोजाना यहाँ पे आने वाला बना दे। आज ऐसा ना हो कि तुम लोग आ गए हो बिकॉज मुहर्रम का बहुत बड़ा दिन है, रोजा है ना। ऐसा हम सीजनल नहीं बनेंगे बहनों। अभी हम कैसे बनेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे बनेंगे इंशाल्लाह। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम 24/7 खड़े रहते थे, अभी हम भी ऐसे ही रहेंगे। देखो बहनों, घूमना फिरना, खाना पीना, शादी, मैयत, सब लगा रहता है, सब दुनिया के काम लगे रहते हैं। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल बात बोलती हूँ, सब काम करे, दुनिया के हर काम करे। ओके, मगर बैलेंस करेंगे, हम दीन का काम भी साथ साथ करेंगे और हो जाता है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कभी मत सोचना कि अगर मैं दीन का काम करूंगी तो दुनिया कैसे होगी, है ना। हमारे जहन में पहले आ जाता है, बिकॉज मेरा भी ऐसे ही होता था कि मेरे को ऐसा लगता था कि अरे मैं ये काम करूंगी तो ये काम नहीं होगा, है ना। मैं दीन के काम करूंगी तो मेरा दुनिया रह जाएगा, मैं बैकवर्ड हो जाऊंगी, मैं बराबर सोऊंगी नहीं, मैं एंजॉय नहीं करूंगी। पर वल्लाही 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 अल्लाह गवाह है बहनों, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तुम अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी करते हो तो अल्लाह उससे बेहतरीन चीज देता है। जब तुम अल्लाह के लिए खड़े होते हो तो अल्लाह, ऐसा हो सकता है बहनों, सोचो जरा, दिमाग जरा लगाओ, जो इंसान दुनिया की मेहनत करता है तो दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। जो दीन की मेहनत करेगा तो कभी हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया के पीछे कर देंगे, उसको महरूम कर देंगे, कभी ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट बहनों, बिना मेहनत के, बिना मशक्कत के, बिना तकलीफ के दुनिया जो है ना हमारे कदमों पर आके गिरती है। दिस आप लोग लिख के रख लेना। जब आप अल्लाह के दीन का काम करोगे, जब अल्लाह का आप अल्लाह की तरफ रुजू करोगे, और आप जब इंशाल्लाह इस दीन के लिए खड़े होगे ना बहनों, तो आप खुद देखोगे कि दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम भाग रहे हो दीन की तरफ और दुनिया तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। तुम खुद ये एक्सपेरिमेंट करोगे इंशाल्लाह, एक्सपीरियंस करोगे। इनफैक्ट क्या होता है, मुझे लगता था कि भाई मेरा क्या होगा, पर अल्लाह ताला इतना अच्छा सुलाता है। कितने बहनें बोलती हो आप कब सोती हो, आप कब उठती हो, आप कब ये करती हो, कब वो करती हो। नहीं, एवरीथिंग अल्लाह मैनेजेस, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो नींद का पूरा करना अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह नींद पूरी करता है, अल्लाह अच्छे से अच्छा खिलाता है, दुनिया के काम अल्लाह ताला करता है, बच्चों की तरबियत अल्लाह ताला करता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब तुम मेरे दीन का काम करोगे, जब तुम मेरे दीन की मदद करोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें साबित कदम रखूंगा। ओके, तो जब मैं दीन का काम करूंगी तो पहले तो मेरा फायदा हो रहा है कि साबित कदम मैं हो गई। ओके, और अल्लाह मेरी मदद करेगा, वक्तों में बरकत देगा, कामों में आसानी देगा, सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, सब कुछ वो करेगा। कितने बार मैं मोबाइल में बैठ जाती हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं रहता है टाइम का, पकाने का टाइम नहीं होता है, गैबी मदद से खाना आ जाता है। कभी कभी जो काम घंटों में होता है वो मिनटों में हो जाता है। समझ में आ रहा है, हर एक का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। वो जिस तरफ चाहे फेर ले, सबके दिलों में मोहब्बत डाल देता है, इज्जत डाल देता है, कुर्बत डाल देता है। अल्लाह तबारक ताला, सब कुछ पावर किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। वक्त किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। वो सब कंट्रोल कर लेता है, वो सब मैनेज कर लेता है, वो सब कुछ कर लेगा। तुम आराम से हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तुम उसके दीन का काम करते रहो और वो तुम्हारे दुनिया का काम करता रहेगा। समझ में आ रहा है? वो तुम्हारा दुनिया परफेक्ट करके दिखा देगा और तुम हैरान होते रहोगे। ये कुरान तुमको दिन ब दिन मौजिजे
دکھاتا رہے گا اور تم شوق میں جاتے رہو گے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, یار یہ کیسے ہو گیا, یار وہ کیسے ہو گیا. اس کو تو گھنٹے گھنٹے لگتے تھے, اب منٹوں میں ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ ہو رہا ہے, کوئی اور کر کے دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب ہوگا بہنوں. جسٹ ٹرسٹ اللہ, اللہ پہ توکل کرے, اللہ پہ بھروسہ کرے, دنیا کبھی نہیں چھینے گا. یاد رکھتا ہے بہنوں, دین کا کام کرنے والے سوچتے ہیں کہ اگر میں دین کا کام کروں گی تو میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گی, میں فرسٹ نہیں آؤں گی, میں تو بیکورڈ رہ جاؤں گی, وہ لڑکی اتنا کما لے گی, سب ہو جائے گا. تم پرفیکٹلی اور سنسیئرلی تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرو, تم خود دیکھو گے. یہ تم ایسے ایسے بہنیں بتا رہی ہے کہ مجھے میری ٹیچر میری عزت کرتی ہے, میری تعریف کرتی ہے, میں اچھے نمبر سے پاس ہو رہی ہوں, جو نمبر سے میں پاس نہیں ہوتی تھی اب میں وہ نمبر سے پاس ہو رہی ہوں. مطلب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دنیا اس کے قدموں میں لا کے ڈالتا ہے. ہم پہلے کھڑے تو ہو جائے, پہلے اس کے دین کے لیے کھڑے تو ہو جائے بہنوں. وہ نیتیں دیکھتا ہے, ہم نے صرف نیتیں کیے تھے بہنوں اور راستے وہ کھول کر دکھایا. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو نا, اگر آپ کو واقعی میں یہ چیزیں لگ رہی ہے, دل پہ اثر کر رہی ہے, تو بہنوں صرف نیت کر لو کہ یا اللہ میں کروں گی, میں تیرے دین کا کام کروں گی, کچھ بھی حالات ہو, کچھ بھی ہو جائے, اللہ مجھے کرنا ہے, پر کیسے کرنا ہے مجھے نہیں آتا. یا اللہ تو مجھ سے کرا, یا اللہ تو مجھ سے کرا, یا اللہ تو مجھ سے کرا, تو حالات کو کھول. اور دیکھنا پورا پورا سب کچھ کرنے والا کرانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ ایک آنسو, ایک تڑپ اور ایک دعا مانگ کے تو دیکھیے, نہیں اللہ نے قبول کیا تو دیکھ لینا, ہے نا. انشاءاللہ آتا ہے نا بہنوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, تو خود ہی کو اتنا بلند کر دو, اتنا اس دین کے کام میں لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے کیا کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, کہ بتا میں تیرے کو کیا دے دوں. ایسا ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. پہلے کر کے تو دیکھے نا انشاءاللہ. اوکے, سوری میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. آپ لوگ کا بہن مطلب اتنا انٹرسٹ دیکھ رہی تھی الحمدللہ, تو بہت دل کیا یہ سب شیئر کرنے کا. آپ لوگ ہے نا بہت بہت بہترین ہو سکتے, بس نیتیں کرے, بس نیتیں کرے. اور یاد رکھنا بہنوں, بولنے سے اوکے, ابھی دیکھو بہنوں میں پہلے سنتی تھی, میرے کلاسز میں پہلے سنتی تھی تو میرا ایمان بڑھتا تھا الحمدللہ, نو ڈاؤٹ کہ نہیں بڑھتا تھا, مگر مجھے لگتا 50% بڑھتا تھا بس. مگر جب میں بولنے والی بنی, اوکے, میں پہلے سنتی تھی اس سے میرا 50% بڑھتا تھا, مگر جب میں بولنے والی بنی نا, تو میں ایگزامپل بتا رہی ہوں, 100% ایمان بنتا ہے بہنوں جب ہم کیا بنتے ہیں, بولنے والے بنتے. تو یاد رکھنا بہنوں, آپ سب لوگ آج سن رہے, کل بولنے والے بنے, کل نہیں آج کا آج بولنے والے بنے. آج جتنے بھی اچھے باتیں آپ سن رہے ہیں نا, اور جو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے, جو بھی آپ کو ذہن میں یاد رکھے, اس کو بولنے والے بنے. اپنے بچوں کو, اپنے فیملی کو, شوہر کو, سب کو بولنے والے بنے. جتنا بولو گے نا بہنوں اتنا تمہارا ایمان بنے گا, اتنا بڑھے گا, اتنا بڑھے گا. دل میں جو ہے نا اللہ کی محبت, اللہ کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ بڑھے گی بہنوں. ہم لوگ جتنا اللہ کی بڑائی کرتے نا بہنوں, اللہ اتنی عزتیں اتنی بڑائی ہماری کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ مطلب لوگوں کے دل میں اتنی بڑائی آ جاتی ہے. ہم لوگ جتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں, جتنا لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ہماری اتنی ہی محبت ڈالتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں جتنا اللہ کا کروں گی نا, اللہ کی بڑائی بول رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, لوگوں کے دل میں میری عزت ڈال رہا ہے. میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہی ہوں, لوگ ہے نا ان کے دل میں میری عزت آ رہی ہے, میری محبت آ رہی ہے. تو دس از گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں جتنا اللہ کے بارے میں بولوں گی, جوڑوں گی, اس کی بڑائی, اس کی عظمت, اتنا لوگ جو ہے نا میری عزت کریں گے, میری سے محبت کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں خود چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. پلیز بہنوں, اس چیز کو ہاتھ سے جانے مت دے. اب روزہ میں ہو تو دل نرم ہے, پلیز بولنے والے بنے. آپ بھی سیکھ کے سکھا سکتے ہیں بہنوں. آپ سب دین کے دائی ہے بہنوں, یاد رکھنا. کوئی نہیں سوچنا کہ ارے میرے سے کیسا کام ہوگا, مجھے کچھ نہیں آتا ہے. نو, یہ جو امت ہے نا بہنوں, یہ جو امت ابھی بن رہی ہے نا بہنوں, یاد رکھنا کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی رسول نہیں آنے والا. ہم ہی ہے بہنوں, ہم ہی ہے الحمدللہ, جو اس دین کے کام کو آگے لے کے جائیں گے, اس قرآن کے پیغام کو آگے لے کے جائیں گے, اور کوئی نہیں ہے بہنوں.
تو ہم کو اللہ تعالیٰ ضرور چنے گا. ہم صرف اور صرف بولنے والے بنے. اوکے انشاءاللہ. اور ہمارے اندر یہ صلاحیت آلریڈی موجود ہے, ان بلڈ ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کے اندر ہے. بس اس کو کیا کرے, پریکٹس کرے. پہلے مرر کے سامنے بولے, بچوں کے سامنے بولے, شوہر کے سامنے بولے, غلطیاں ہوں گے, اس کے بعد پریکٹس ہوگی, اور اس کے بعد آپ لوگ اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ کہیں بھی ہو, آپ اللہ کی بڑائی, اللہ کے بارے میں بولتے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کر لے, میرے سے بھی بہت اچھا دین کا دائی بنا لے, پورے عالمین میں ہم سب کو قرآن کے لیے قبول کر لے. آمین آمین آمین. سوری بہنوں, پلیز مجھے دعا میں خاص یاد رکھنا. دعا پڑھ لیتی ہوں واپس سے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.